A very happy afternoon to all of you. Normally the post-lunch session is very difficult, but looking at the day since morning 11, I believe that since morning 11 we have just prepared the ground how to build a home or build homes for others. We have just prepared the ground, and when you think of curating that beautiful house, you need one critical element, which is finance. And we'll be talking about finance over next 1 hour. And with that note, I believe the lunch won't be that heavy to draw you back, because finance is something which always keeps us alive. And to take this session forward, may I request CA Binod Agarwal ji for coming forward to the dais. And when you talk about Binod Agarwal ji with not less than 35 years of experience, but when it comes to real estate nuts and bolts, the finance element he has or he's been handling with respect to feasibility study, project financing and everything over so many years for so many clients. And with this note, may I request the office to hand over the Uttariya to me so that we can formally invite him. Thank you so much. Now, Binod Bhaiya, the space is yours, and please be attentive in terms of understanding the project financing, how this goes with feasibility study, because this is again one of the critical element of this industry, and without this industry or the practice cannot move up. And there are opportunities for us also that how and why we should get into this mode of practice with real estate. Thank you so much. Thank you, Vishwaranjan ji. A very good afternoon to all of you. So, Mittal ji has given you good idea how to measure the land. Sarfraz has given how to find it in the web portal and all. Now, अब घर बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत है, पैसे की. So, I'll be in next 60 minutes navigating through different slides. But एक चीज़ I will like to share. Slides will be like maybe little boring. I will be sharing some of my real life experience. That will make it more meaningful and little bit more interesting. Now, you are all chartered accountants here. No need to emphasize more on the topic, which is project feasibility analysis and project financing. Now, feasibility analysis is just like any other feasibility analysis, but why the real estate feasibility analysis is so important? We must go to the root cause, because एक real estate में आपकी हार्ड अर्न मनी लगी हुई है, आपके क्लाइंट की हार्ड अर्न मनी लगी हुई है, कईयों की लाइफ लॉन्ग सेविंग है, एंड बियॉन्ड दैट दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी. द ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज अराउंड 7.8 lakh crore. That is a huge number. Now, the proper planning and the proper execution of real estate will certainly add to these numbers, which will be great for the GDP of the nation. So, before we move into that arena, मैं इसको बहुत ही साधारण शब्दों में आपसे एक फिजिबिलिटी एनालिसिस के बारे में बताना चाहूँगा. बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू
are giving consultancy to your real estate clients or are in real estates? Okay, okay, good number, yeah, yeah. So, moving forward, when I'll divide this entire session into two parts. The first one will be technical feasibility, and the second will be the project finance. We'll come to the project finance later on. Let's go to the feasibility part. Now, what according to you should be the technical feasibility of a real estate project? Anyone? Soil testing, whether the property is mutated properly or not, whether all the documents are in proper way or not, whether ownership belongs to the person or not. Any land which is converted into industrial land, that is almost impossible to convert to us. Very correct. Anything else other than land? Again, that is on land side, right? Anything else which comes to your mind? Disputed whether this land is a disputed land or cleared land. Correct. So, yeah, that is the project approval side you are saying. Yeah, very good. Good. Great. Yeah. Right, right, right. So, you have almost touched all my eligible criteria for feasibility analysis to be considered before we spend a single rupees on any project. The first thing which comes, now since land is a very integral part, I'll definitely say land must be properly inquired into. I'll be covering that part. But before we come to the project, the first thing which we need to know is the market feasibility. How is the market? And market आपको कलकत्ते का नहीं लेना है, आपको भुवनेश्वर का नहीं लेना है, सिलीगुड़ी का नहीं लेना है, आपको लेना है जहां आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे 2 से 5 किलोमीटर के बीच में व्हाट आर द वेरियस प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग, राइट? वहाँ पे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी मार्केटेबिलिटी क्या है, कौन कौन वहाँ प्रोजेक्ट ला रहा है. सो दैट मार्केट फिजिबिलिटी हैज़ टू बी सर्टेन फर्स्ट. नाउ देर आर 5 important ingredients of those market feasibility. I am coming from feasibility to market feasibility, and in market feasibility we have got 5 points. First is the micro market. That is what we said कि within 2 to 5 kilometers वहाँ कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं. अगर वहाँ आपको लगता है कि आने वाले दिनों में there is some metro connectivity which is coming up, or widening of some NH is coming up, right? Or some great commercial hub is coming up, definitely the demand will shoot up, and by the time your project is complete there will be a tremendous demand. So that micro market study is very important. Now the second thing comes, what is the supply and what is the demand versus supply. Now suppose there are multiple projects coming up, okay, what you could sense now that there is a future prospect. Your competitors have found it 6 months back and they have already launched the project. So वो फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर वी कमिट टू आवर प्रोजेक्ट. अगर वहाँ 10 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और मैं 11वां प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट मेरे से पहले ये 10 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होना पड़ेगा, राइट? थर्ड इज द टारगेट सेगमेंट. I am coming only in the market side. In the market feasibility, this is the third point. Which are your target? Because when you decide about a real estate project, the first thing you see is which target you are, because suppose you are putting up a project in Newtown. Now, what are your target? The targets are the real estate sector,
The targets are the employees of the state government and the central government. Okay, so you should know your target rather than designing the project and then finding who will be my buyer. So that will be working backward. Am I clear? तो मैंने अभी तक क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए सर? जस्ट ए क्विक ग्रैप्स. माइक्रो मार्केटिंग, डिमांड वर्सेस सप्लाई, and third thing is the target consumer. Right. Now fourth is, who are your competitors? Who are your competitors? Before launching the project, for assessing the feasibility, for determining the feasibility, the promoter needs to see within that vicinity how many projects are coming, what facilities they are giving. अगर वहाँ पे रूफ टॉप वॉकिंग है, स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस फैसिलिटी है, and what is the track record of that promoter? All these things, when you launch the project, your buyer will be comparing it with all those people, all those promoters. So before the buyer does it, if you do it your homework first, you are in a safer zone. You can plan your project accordingly. So this is the fourth important part of the marketing feasibility. And fifth one, but not the least, there are many others. What is the absorption rate? Now this is an offshoot of demand versus supply. We say there is a supply of say 10 projects and all. वहाँ market की what is the absorption? Suppose the absorption is 800 units in a month, right? And the supply is suppose 2000 units. So there is a likelihood that you will be holding your stocks twice the number of years which you thought. If you wanted to complete the project in 3 years, maybe you complete it in 6 years in terms of selling, right? So that is these 5 factors, if we decide it correctly, marketing, because in a real estate, the profit is not earned when you sell your project. The profit is earned on the day when you acquire your land, on the day when you create the financial structure of that project, right? सेल में जो आता है वो तो आपने पहले ही डिटरमिन कर लिया है. आप किस रेट में लैंड ले रहे हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है. These 2 things only add, because the other things, the market dynamics, the sales rate, they are all market driven. But this financial structure, this is not market driven. This is your strategically you decide about it. So this is something which is under your control. And in most of the cases, this makes or mar a project's feasibility. So again, I will, at the cost of repetition, I will again like to just revive. Market में हमने 5 चीज़ें डिस्कस की. First is the micro market, second is the demand versus supply, third is the target customer, 4 is the who are your competing projects, and the 5 is the absorption rate. So now you find that market is good, you can launch a project, but उसके लिए अब मुझे I need a clear title of a land where I want to build the project. So there comes the technical and the legal feasibility. I'll be covering both this at the same time, right? So the technical and legal, there I think Mr. Mittal has already discussed on the land side various parameters of the feasibility or the technical part thereof, right? Now here I will just like to add a little that you must have a robust due diligence system on the land. It may take months, you may need to spend lakhs, but that is the most important part when we start a project.
अगर मान लीजिए लैंड में कोई टाइटल डिफेक्ट आता है, डिफेंडिंग द टाइटल और fighting a court case is a very costly affair. It involves time and money spent not only on land but also on the project. Right? So the losses mounted later on. So it is better, even if your project is delayed, do a lot of due diligence on the land side. कई चीज़ें मित्तल जी ने डिस्कस की हैं regarding what are the mortgages which the sites are there, right? Legal cases, inheritance issues, okay? And nationwide the situation is same. Whatever is in Bengal, this is also in Odisha, this is also in Delhi. तो इन चीज़ों पे पूरा ध्यान दीजिए और उसके बाद ही फिर वो लैंड को अपने को एक्वायर करना चाहिए. Now the second part is what is the zone. Like some zones are good for residential, some zones are good for like warehousing, some are good for commercials. So if you want to put a commercial and you have suppose acquired something where only the residential buildings are permissible, now you will be in a difficult wicket. So zoning requirements should also be seen so far as lands are concerned. The third one is the FAR or FSI, floor area ratio. Okay. So now generally that is determined based on the approach road. आपका 30 फीट का है तो इतना मिलेगा, 40 फीट का है तो इतना मिलेगा, all these things. Okay. So the ratio goes up to 7, 8 and in Bombay में perhaps 10. अच्छा, any amount? Unlimited. Okay. Yeah. Right. So when the FSI is high, definitely you have to pay some amount to the development authority towards the fees. Beyond the base FSI, you need to pay. Suppose आपकी base FSI 2 है, आपने 40,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया, आपकी base FSI 2 है, तो how much I am allowed to construct there? 80,000. Now suppose मेरे को वहाँ पे FSI allowed है up to 5. My land approach road is more than 60 feet. My FSI allowed is 5. So I can go up to 2 lakh. Now 80,000 versus 2 lakhs. Okay. So that differentiate the project's feasibility and the profitability. In Bhubaneswar also we purchase FAR. So the rates there are 25% of the land cost. Now the land cost has been defined as the benchmark value of the registering authority. तो जो आप यहाँ पे वैल्यूएशन बता रहे हैं, वो वैल्यूएशन का 25% पर स्क्वायर फीट आई हैव टू पे टू द डेवलपमेंट अथॉरिटीज. राइट. तो जो मेरी बाकी ज़मीन है उसका तो मैं 50% दे ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 FAR मेरे को फ्री मिल रहा है. तो सपोज आई एम एक्वायरिंग एट 100 रुपीज़, मेरे को 2 FAR मिल रहे हैं तो मेरा पर स्क्वायर फीट 50 रुपीज़ में हो रहा है. बट उसके ऊपर अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो मुझे सिर्फ 25 रुपये देना है. तो माई लैंड कॉस्ट कम्स डाउन प्रोपोर्शनेटली. सो दैट डिटरमिन्स ऑल्सो द फ्यूचर फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट. पार्डन? ये फ्लोर सर्विस एरिया होती है वो. बिकॉज समवेयर इट इज नॉट FAR नहीं कहते हैं उसको, FSI कहते हैं. बोथ आर सेम थिंग. इन गुजरात दे कॉल इट FSI एंड इन स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया you sell the FSI because the government is the holder of the land there and they sell the FSI. जैसे आपको उन्होंने कोई भी एरिया दी और उसमें कहा कि you are permissible to, माने you can make 1 lakh square feet here. तो 1 lakh square feet at the rate of 1,000 rupees आपसे वो पैसा ले लेगा, 10 करोड़ रुपये आपसे ले लेगा and you are free to construct 1 lakh. Okay, so there they charge per FSI. Okay, that part we have not been.
Okay. In south also, sir, I'm not aware about south. But what happens is, suppose I have a 10 katta land in Mumbai. Okay. And I have only constructed one bungalow of 2,000 square feet. And I'm allowed 15,000 square feet. So I can sell my 14,000. 13,000 square feet at a price to another developer. Oh, That is tradable affair. okay. And that is an interesting subject, and there the players come in there to go into the small bungalows and purchase, because they don't have to purchase land. Right. They're only purchasing paper rights. Right. So that is the FAR floor area issues. Ah. And FSI is floor service index. Both are same. Both are same. Both are same. That means after construction, they give 10,000 to the landlord and 5,000 they will. आज आपने बंगलो बनाया, आपको एलिजिबल 15 था, आपने 2,000 ही बनाया, 13,000 आप दूसरे आप दूसरे को बेच दिए, दूसरे को बेच दिए। नहीं, हाँ। तो मेरे पास है ही सर, मेरे लैंड पे 3 गुना अलाउ था, मैं 13,000 आपसे खरीदूंगा, 5,000 उससे खरीदूंगा, 7,000 उससे खरीदूंगा। डेवलपर इसको यूज कैसे करेगा? डेवलपर हाइट बढ़ाएगा। वो तो अपने लिए तो बनाएगा ना, मेरा भी नहीं नहीं, वो दैट इज व्हाट। खरीद दिया, मैं मेरी लैंड पे बनाऊंगा ना, तो मेरी लैंड पे मैं आपको 25% दाम दे के खरीद रहा हूँ, और मेरी लैंड के तल्ले बढ़ रहे हैं। आप ये समझिए, हैदराबाद इज फ्री, हियर यू आर ट्रेडिंग, कलकत्ता इज डूइंग नथिंग। Yeah, sure. Please. That's why how can we make this session interactive? Yeah. अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? सर, we पूरा world unlimited हो रहा है। समझते हैं क्या? Hyderabad what they did is in 2007, the government has come because they wanted to bring more business into the Hyderabad. They made it, you build whatever you want height, but setback you should follow. Yes. The moment you follow the setback, you can build whatever you want. इतना छोड़ना पड़ेगा साइड साइड। I think Bengaluru, अपन हाइट तो you have a 3.25. क्या sir, maximum FSI? I'll tell you. I'll tell you. There. स्क्वायर में तो कैप तो नहीं है। 3.5 है इधर. नहीं, वहाँ पर हैदराबाद में कैप तो हो ही गया। इतना छोड़ना पड़ेगा तो कैप तो हो गया। 13, if you have larger project, 3 acre, 5 acre, 10 acre, na, you will achieve 12 FSI, 12 FAR. So इसीलिए if you see that per acre, actually 170 crore rupees per acre the land price. That is the price. See, there are. 170 crore. There- You can't imagine the price of the land in Hyderabad for a real estate development in case of a lot. 170 crore, even if you don't get that price in the prime area of West Bengal. all because of free affair। 3 FSI, they achieved 12 FSI, that means to say what you, the price of Kolkata of the same land 45 crores, you will generate 170 crores because the 1:4 is a construction. And how the city will develop, think about that। 6 times. Thank you, Vinay. No, not sorry. In fact, you added value to my subject of FSI. That how valuable is FSI. So you added value to this. Thank you for that, very much for that. Now the fourth part, which comes very important about technical and legal, is the various approvals which we get. Now sometime you have purchased the right land, mapping भी ठीक है, zoning भी ठीक है, area भी आपको ठीक मिल गया. Then all of a sudden you find that this is environmental sensitive area. Now there they have got their own central government regulations, state government regulations. So the various approvals take time to come. Some approvals will follow the forest environment route and then it will come. Some will come from the state government. So this is also delay and debar a project from completing in a timely manner. समय से कंप्लीट होने के लिए प्रोजेक्ट के वेरियस अप्रूवल्स लाइक म्युनिसिपल, एनवायरमेंटल, फायर एनओसी, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो विनय सर बता रहे थे, आप अनलिमिटेड जा सकते हैं, बट अनलिमिटेड कितना जा सकते हैं सर? ऊपर प्लेन भी तो जाता है, कैसे जाएंगे? ना, आई एम कमिंग नाउ. दे हैव गॉट ए फ्लाई जोन, राइट? फ्रॉम एवरी एयरपोर्ट you have got a flyer zone, and each area has got a maximum height which is permissible. Suppose you are not coming within that fly zone, the sky is not even the limit, you can touch it. But if you are coming within that fly zone, now they have got a specific area earmarked for that particular zone. So your limiting is in Hyderabad is, if you are coming under the fly zone, you have to follow the Airport Authority of India's height regulations, their permissions. Yes sir, please. जो फ्लाई जोन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपका जो रनवे है, रनवे का फ्लाई जोन अलग है और लेफ्ट टू राइट ऑफ रनवे का फ्लाई जोन अलग है। Yeah, the fly zone, in fact,
इज नॉट द आवर रनवे फ्लाई जोन. एयरपोर्ट का अपना एक फ्लाई जोन होता है फॉर. उसमें भी दो है, मैं ये बताना चाहता हूँ ओके. कि जो रनवे होता है वो रनवे स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट फ्लाई उड़ेगी या उल्टी उड़ेगी, तो उसका फ्लाई जोन अलग है और लेफ्ट टू राइट का फ्लाई जोन अलग है. सर इसमें होता क्या है ना, यू हैव टू नॉट सी ओनली द वन साइड बिकॉज द फ्लाइट कीप्स कमिंग फ्रॉम, वही बोल रहा हूँ बिकॉज जो लैंडिंग भी करती है और एक्सिन भी करती है. बोथ साइड का अलग होता तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की साइट पे ही अवेलेबल है टू सी द वेरियस height which is permissible for a particular point. If you put that point, it will tell you here the maximum height is suppose 45 meter, 65 meter, 85 meter, whatever. So एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हाइट जो है वो भी आपकी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है. सो दैट ऑल्सो इज, या प्लीज. Yeah. एक मेरे बाजू वाले प्लॉट पे एक सर्टेन हाइट तक का प्रोजेक्ट बन के रेडी है, तो ऑफ कोर्स उसने आई एम अज्यूमिंग कि एआई से अप्रूवल लिया हो. उसके बाजू में मैं एक प्लॉट बना रहा हूँ, उससे उसी हाइट का या उससे कम, तो क्या मेरे को स्टिल जाके उनसे अप्रूवल देना पड़ेगा? यस यस. आपके यहाँ पे ही एक उदाहरण है, न्यू टाउन में एक होटल खुला है एटमॉस्फियर, पिछले 4 महीने से बंद है. 7 स्टार फैसिलिटी है वो. ओके. वो होटल सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एनओसी उसकी नहीं आई, उस कारण बंद है. 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर. सर उसमें अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, विद टाइम टू कम इन ईयर और 2 इट विल बी सॉल्व्ड. दे विल जोन इट आउट एज ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, और उसमें आप अगर ग्रीन जोन में पड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. तो फिर इनका क्वेश्चन में आपको सेकंड बिल्डिंग को लेना नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट फर्स्ट बिल्डिंग भी ऑटोमेटिक अलाउ है. नहीं सर, देखिए मान लिया पहला बिल्डिंग ने ग्रीन जोन एयर जोन कुछ ही नहीं देखा, बना दिया. तब तो दिक्कत. सो वी शुड नॉट. प्रोजेक्ट मेरा है, पैसे मेरे लगेंगे, बगल वाले ने क्या किया मेरे को नहीं जानना सर. मैं इसमें 200 करोड़ रुपया कमिट कर रहा हूँ, 100 करोड़ रुपया कमिट कर रहा हूँ, मेरा अपना ड्यू डिलीजेंस होगा. बगल वाले ने कोई गलती की नहीं की, आई विल नॉट टेक, है ना. तो मैं अपने ढंग से उसको एवेल्युएट करूँगा मेरा. नाउ द लास्ट पॉइंट हियर इज रेरा. आज के दिन हर फ्लैट बायर को, आपको जितना मालूम है उससे ज़्यादा फ्लैट बायर को मालूम है व्हाट इज रेरा. गॉन आर द डेज जब बिल्डर बोलता था कि ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ऐसा होगा वैसा नहीं होगा. बिका हुआ माल को 3 बार बेच देते थे. राइट नाउ ऑन द रेरा वेबसाइट you can see which flat has been sold, with what amenities it has been sold, to whom it has been sold. Okay, because each agreement is required to be registered, agreement for sale, and once an agreement for sale is executed, you need to file it before the RERA authorities. I don't know about West Bengal. I am telling you about my experience from the other states. जी रिगार्डिंग नहीं दैट वो नहीं वो अपने टॉपिक से बाहर का चीज़ है. तो उन्होंने कहा कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है ना, पर ये चीज़ को कोई माने तब होगा. और आज के दिन रेरा में जितना एक्टिविज्म है शायद ज़रूरत से ज़्यादा है. दे आर ओवर स्टेपिंग देयर लिमिट, बट एनी वे दैट इज़ नॉट माई टॉपिक. माई टॉपिक इज फिजिबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेरा. राइट. तो अगर अपने ये सारी ड्यू डिलीजेंस कर लें लीगल में ना, मुझे लग रहा है अपने थोड़ा सा भटक गए हैं क्या. ठीक है, तो आप बताइए कौन कौन सा चीज़ मैंने बताया आपको लीगल में. राइट, जोनिंग की है. वेरी अप्रूवल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? ग्रेट, क्लैप फॉर हिम. Rera she showed earlier. Someone else told from the crowd. Yeah. So
To sum up, due diligence, legal due diligence is not an expense. It is an insurance. Right? So with these words, I will sum up legal and technical. So first we did market, second we did legal and technical. The fourth and the last one is the most important part for which I am here, the financial feasibility. अब तो ये तो सब सारा सीए का सब्जेक्ट है, मुझे बताइए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में मुझे क्या क्या देखना चाहिए। प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे कब तक आ जाएगा, कितना लगाना पड़ेगा, कितना बचे, कितना लगाना पड़ेगा, कितना देगा, कितने दिन में देगा, पेबैक पीरियड, राइट। ना इन सब के लिए आपको नहीं लगता है कि मुझे थोड़ी सी फिजिबिलिटी जाननी पड़ेगी, कितने दिन में पैसा आएगा, कब पैसा आएगा, कितना आएगा, पहले तो जानना पड़ेगा ना सर, मेरे को ज़मीन में कितना लगेगा, मार्केट सर्वे से मुझे मालूम पड़ेगा मेरा माल कितना में बिकेगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी से मुझे मालूम पड़ेगा मेरे अप्रूवल में क्या खर्चा आएगा, मार्केट से मुझे भी मालूम पड़ेगा कि मैं माल किसको बेचूंगा, जिसको बेचूंगा उसका मैक्सिमम परमिसिबल रेंज कितना है, मैं सैलरी वालों को बेचूंगा भुवनेश्वर में या कलकत्ता में, उनका मैक्सिमम में 7,000, 6,000, 8,000, उससे ऊपर नहीं जाएगा मेरा माल, राइट। उसके आधार पे तो मैं ये फाइनेंशियल पे पहुंचूंगा। सो नाउ अगेन आई डिवाइड द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इन टू मेजर पार्ट। वन इज द, एज यू राइटली सेड, मित्तल जी ने सही पकड़ा, कितना लगेगा, कितना मिलेगा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉस्ट क्या लगेगी, रेवेन्यू क्या मिलेगी, राइट। नाउ दीज नंबर्स वेरी, मैंने एक मॉडल उठाया था, वहाँ से मैंने इसको लिया है। फॉर अ प्रोजेक्ट एट अ स्मॉलर लोकेशन, particularly ईस्टर्न इंडिया में, द लैंड कॉस्ट may be little less, the construction cost may be little more, but more or less the number matches, right? तो on the project cost मैं आपको इसके जो 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर ले जाना चाहता हूँ। लैंड को हम सिर्फ लैंड की कॉस्ट ना पकड़ें, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो नीड टू एम्फसाइज ऑन दिस। लैंड मतलब लैंड प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस 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 whatever we pay over the table, under the table, everything, all included, right? And if you ask me, even the FAR and FSI cost need to be included in the land cost. Otherwise, how do we account for it? अगर आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ 5 तले की बिल्डिंग, मैंने FAR 5 को लेके बनाना है, 20 तले की बिल्डिंग बनानी है, तो मेरे को उसका 25% ऑफ द लैंड कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा। और अगर मैं 3 स्टोरी ज़्यादा बना रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, या 3 FAR ज़्यादा ले रहा हूँ, तो लैंड का 75% मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट। तो मेरी टोटल लैंड कॉस्ट 100 रुपये नहीं है सर, 175 रुपये हो गई। तो लैंड कॉस्ट नीड्स टू बी डिटरमिन्ड। द सेकेंड कॉस्ट कम्स कंस्ट्रक्शन, वेल दैट इज दो इवन नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सब्जेक्ट, बट वी नीड टू नो, इट कम्स समवेयर नियर 45 to 50%। अगेन इट ऑल वेरीज, आपकी लैंड कॉस्ट क्या है, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, राइट। सो दीज आर लिटिल वेरिएबल नंबर्स। द थर्ड कम्स अप्रूवल्स विच आई हैव नरेटेड, NOC, एयरपोर्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ऑल दीज थिंग्स, दे आर अराउंड 3 to 5%, डिपेंड। या प्लीज। राइट, ये 3 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लेके हम इसको पेनल्टी के रूप में, आई विल कम टू दैट पॉइंट। या बिकॉज दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। वो आप जो बता रहे हैं मैं इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में लूँगा, दैट कम्स अंडर रेगुलराइजेशन स्कीम्स, एंड वो हर स्टेट में है। इट इज़ ऑल्सो फॉर वेस्ट बंगाल, इट इज़ ऑल्सो इन ओडिशा, इट इज़ ऑल्सो इन दिल्ली, वी कॉल इट रेगुलराइजेशन स्कीम।
कहीं पे इसको सर्व क्षमा बोलते हैं, कहीं रेगुलराइजेशन बोलते हैं, बट स्कीम इज सेम. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लेवरेज. मैं 5 लाख का लिया हूँ 6 लाख बना दूंगा, सर नहीं होगा. रेरा वाला रोक देगा, माल आप बेच नहीं पाओगे. बेचोगे कैसे? रेरा में आपने डिक्लेयर किया 20 तल्ला, 22 तल्ला की बिल्डिंग बनाओगे तो 2 तल्ला रेरा वाला पहले काटने का आएगा. सो दैट इज नॉट द सब्जेक्ट हियर. अपने आएंगे उस पर, दैट इज अ मिसलेनियस. नाउ बिफोर आई कमिट ऑन द फाइनेंशियल साइड, द लास्ट वन इज योर मार्केटिंग एक्सपेंसेस. नाउ मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जनरली क्या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक शुड बी मार्केटिंग एक्सपेंसेस? कमीशन, कमीशन, पार्टी दे दिए, फिर प्री लॉन्चिंग, भूमि पूजन मार्केटिंग में नहीं है आपका है. ठीक है, 500 को बुला लिए तो मार्केटिंग में आ जाएगा. ठीक है, 4 और होर्डिंग. ओके ओके. नाउ आपने लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं. मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा फ्रॉम द बिल्डर पर्सपेक्टिव. हाँ, दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज पॉइंट नंबर 1, कमीशन. वेल, डिस्काउंट इज अगेन यू टेक नेट ऑफ द प्राइस. आपको जो डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा मिला वो मेरा है, तो मैं डिस्काउंट को कॉस्ट में नहीं मानता उसको, दैट इज सेल प्राइस. राइट. सो अब इसमें एक छोटी सी चीज़ अपने भूल गए. आप कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत बढ़िया विजुअल क्रिएट हो रहा है, आपको वॉक थ्रू मिल रहा है, लोग चल रहे हैं. देन आप अगर वहाँ साइट पे जाते हो तो आपको एक मॉडल फ्लैट बना हुआ मिलता है. सर इसके पैसे लगते हैं. आपको एक ब्रोशर मिलता है, बड़ा प्यारा होता है. एक वी आर टॉकिंग अबाउट या सो मैं एडवर्टीजमेंट के 5 डिफरेंट पहलू आपको बता रहा हूँ. पहला हो गया वॉक थ्रू, दूसरा हो गया मॉडल, तीसरा हो गया आपका ब्रोशर, चौथा आपकी हो गई होर्डिंग्स. ओके. सो ऑल दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ओनली वन थिंग, एडवर्टीजमेंट, विच कम्स अंडर मार्केटिंग. तो इसको हमने बहुत लाइटली कह दिया कि सर एडवर्टीजमेंट. और इसमें एक मैंने आजकल जो जोर से चला हुआ है वो है सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट. आप फेसबुक में एक बार अगर आप देख लें एक फ्लैट को, तो आपको रात को सपने में भी वो फेसबुक वाला फ्लैट ही दिखाएगा, कंटिन्यूसली फ्लैट फ्लैट फ्लैट, है ना. दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड इट इज़ ए वेरी इवॉल्विंग मार्केटिंग टूल इन द हैंड्स ऑफ द बिल्डर, बिकॉज वो आपको पैसिवली अपने प्रोजेक्ट दिखा रहा है. राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, पेपर एडवर्टीजमेंट, जो कि आजकल कोई देखता नहीं है. राइट. तो तो ये सारे एडवर्टीजमेंट के टूल्स हो गए. दिस कंस्टिट्यूट अराउंड 3 to 4% ऑफ योर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, विच इज़ सब्सटेंशियल. आज अगर आप कोई प्रोजेक्ट 8,000 रुपये में बेच रहे हैं, 3 से 4% मतलब 300 रुपया पर स्क्वायर फीट का खर्चा आपका इन सारी चीज़ों में जा रहा है. 2% आपका मार्केटिंग हो गया, प्लस कुछ भी एफर्ट वगैरह आपके जो मार्केटिंग टीम का खर्चा मिला के 5 से 7% सर आपका खर्चा आता है फॉर एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली होता क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा. गोदरेज को आप जानते हैं, गोदरेज को आप जानते हैं ना, पर गोदरेज साबुन का विज्ञापन तो आप देख ही रहे हो, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है सर. एडवर्टीजमेंट इज दैट साइंस. राइट. एनीवे, हो सकता है इफ़ यू हैव ए वेरी गुड नेम, आपको एडवर्टीजमेंट थोड़ा कम करना पड़े, आपको प्रयास थोड़ा कम करना पड़े. राइट. बट करना तो पड़ेगा. मैंने जब 5 से 7 कहा तो एक नॉर्मल बिल्डर के लिए 7% है, तो एक बहुत अच्छे बिल्डर के लिए 5% होगी, उससे कम नहीं होगा. बिकॉज मार्केट में जो सेल्समैन हैं, जो कमीशन एजेंट हैं, उनके कमीशन तो फिक्स हैं. आप उनके साथ आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकते. उसको तो 2 मिनट लगेगा. उसके पास जब कोई कस्टमर आता है,
उसको समझाना पड़ेगा। वो तो आप अगर कमीशन नहीं दे रहे हो तो खाली वो दो ही बात बोलेगा उसको। ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसका वास्तु ठीक नहीं। 4 कस्टमर वापिस आ गए, वहां से 4 कस्टमर वापिस आ गया, बोला आप अगर चाहो तो मैं दे देता हूं, मेरे पास तो उसका भी पड़ा हुआ है, राइट। तो ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस है एंड दैट इज वेरी वेरी सब्सटेंशियल, वेरी सब्सटेंशियल। एक बार मैं फिर से पूछ लूं, मुझे लग रहा है मैं टीचर बनते जा रहा हूं। मार्केटिंग में आपने क्या क्या डिस्कस किए? वो तो सब मार्केटिंग में आ गया, वो एक पार्ट मार्केटिंग में ही। मैंने आपको सेलिंग में, सॉरी, so one was the project cost, second is the construction cost, third is the approval cost, fourth was the marketing cost. So these 4 costs we decided basically are taken into account for calculating or for arriving at the feasibility of any project. हाँ जी, सर 8% हमारी कमाई भी तो पकड़िए। नहीं मैं आ रहा हूँ, धीरे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर। हाँ, वही जो यहाँ स्लाइड में नहीं बता सकते वो खर्चे भी हैं। पर एक चीज इससे साबित होती है मित्तल जी, क्या बताइए? सर ने बहुत ध्यान से पढ़ा है उसको, है ना, बहुत ध्यान से उसको देखा है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं जब आया था आई वॉज जस्ट थिंकिंग ये 92 हुआ है, इसको मैं कैसे पूरा करूं। मैंने कहा कोई पूछेगा तो समझ में आएगा यार, कोई पूछेगा नहीं तो क्या फायदा, चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आपने उसको बहुत ध्यान से देखा। हाँ जी, एब्सोल्युटली। सो देयर आर 2 पार्ट। एक मैं कुछ कंटीजेंसी भी रखता हूँ एट वेरियस फोरम, लाइक कुछ मेरे कंस्ट्रक्शन में भी आते हैं, है ना, कुछ लैंड पे भी आते हैं, फ्यूचर लैंड डिस्प्यूट्स में भी आते हैं, है ना। देयर आर मेनी अदर कंटीजेंसीज, यू नेवर नो, बिकॉज आप बंगाल में रहते हैं, आप सब जानते होंगे, है ना। और हर जगह, नॉट ओनली बंगाल, इन उड़ीसा ऑल्सो इट इज़ देयर, इन साउथ ऑल्सो इट इज़ देयर। यू आर, बिकॉज देखिए रियल इस्टेट सबका बुल्स आया है, वो सब उसको ध्यान से देखते हैं, है ना। हाँ बस, हाँ कामधेनु है वो, है ना। तो उसको सब धोना चाहते हैं, तो वो 7-8-10% जो है उन सब चीज़ों को मिला के आपके पास बफर स्टॉक है। सर मेरा एक जनरल फाइनेंस का क्वेश्चन है जो मेरे सेमिनार्स में भी ऑडियंस पूछती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से 100% है, तो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी जानने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर से कितना % पैसा मैक्सिमम लगेगा। सर ये एक्सपीरियंस आपका क्या होगा? या नाउ उसी हिसाब से प्रोजेक्ट वायबिलिटी मित्तल जी, मैं ज़्यादा लगेगा तो सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अपने आज जब मार्केटिंग की बात करते हैं तो मैंने वहाँ पे आपको 5 टॉपिक बताए थे मार्केटिंग में। डिमांड वर्सेस सप्लाई और एब्जॉर्प्शन, उसमें 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट थे। तो मान लीजिए अगर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट अगर वहाँ मान लीजिए 100 की है और आपको लगता है कि 40 आने से भी मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो यू आर ऑन ए वेरी साउंड विकेट। अगर आपको लग रहा है 80 आने से मेरा ब्रेक इवन होगा या आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, यू आर ऑन ए स्टिकी विकेट। मैं कितना % पैसा प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले मेरा बफर में रखूँ? या तो अब वो मेरा पार्ट आ रहा है, वो इसके बाद आई एम कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली, द व्हाट विल बी माई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, राइट। आई विल बी कमिंग ऑन दैट पार्ट, बट की ड्राइवर्स वही रहेंगे। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट, व्हाट इज द डिमांड वर्सेस सप्लाई, राइट। नाउ इन स्लाइड्स के बाहर भी आई हैव गॉट ए वेरी स्मॉल, या they are the key financial ratio. I think I am deliberating before this August group of chartered accountants. मुझे इन रेशियो के बारे में ज़्यादा उनसे और नहीं बताना है, बट इस रेशियो का क्या वैल्यू हो तब आपका प्रोजेक्ट वायबल होता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कंप्लीट होती है, दैट आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू। IRR जो आपने देखा है
एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में अगर 18 से 24% है तो दैट प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड साउंड। इफ इट इज लेस देन दैट, लेस देन 18%, and this all I am talking at the time of making feasibility study, not the real one, right? real में क्या आएगा मुझे नहीं मालूम है, बट feasibility study में आपका 18 से 24% है तो आप एक साउंड विकेट में हैं। 10%, 15% कॉस्ट ओवररन कुछ भी होता है तो यू कैन स्टिल मेक सम मनी, यू विल नॉट सफर लॉस। नाउ देर इज ए ग्रॉस मार्जिन कंसेप्ट। ग्रॉस मार्जिन को, well it is not covered in that slide, but anyway I will be covering it. Gross margin, if it is 25 to 30%, right? So then that project is considered feasible, and don't touch anything which is less than 30% or 25%, because आप 20% में काम करते हैं, प्रोजेक्ट अगर 10% ओवररन हो गया, यू आर गॉन, है ना। 15% के मार्जिन में जिन लोगों ने काम किया है हमने देखा है उनको प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के जाते हुए। ओवर माई लास्ट सेवरल ईयर ऑफ प्रैक्टिस आई हैव सीन कि लोग जो बहुत थीन मार्जिन में काम करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो देयर शुड ऑलवेज बी ए बफर। आपको जो 30 दिख रहा है आखिरी में अगर 15 भी बच जाता है तो यू हैव डन ए गुड जॉब, राइट। एंड द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंस एंड ऑल इज द DSCR। तो सारी बैंकों का रूल है 1.25 मिनिमम होना चाहिए, बट इफ़ यू आस्क माई प्रैक्टिकल व्यू दिस शुड बी at 1.5, not 1.25, क्योंकि 1.25 is a very critical issue. Now DSCR in case of a project finance differs from the DSCR we generally calculate for our other projects. I will be covering that aspect in my second part, that is the finance part. So now we are discussing about the feasibility. तो feasibility में सर हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? मार्केट, टेक्निकल, लीगल, राइट। और अभी हमने डिस्कस किया की रेशियोज और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, राइट। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स माय वन सेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। होप आई हैव एनलाइटन यू ऑन दिस सब्जेक्ट अ लिटिल बिट। कैसा लगा आपको टेक्निकल पे? जी आ रहा हूँ सर, आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। इसके बाद आई एम कमिंग टू माई सेकेंड पार्ट, दैट इज अरेंजिंग द प्रोजेक्ट फिनांस। नहीं, वेल ओके। चलिए, तो हमने मार्केट फिजिबिलिटी देख ली, ज़मीन खरीद ली, ऑल फिजिबिलिटी एस्पेक्ट कंप्लीटेड। नाउ वी वांट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो उसके लिए पैसे चाहिएंगे, कहाँ से आएंगे? सीधा एडवांस? अरे नहीं यार, ऐसा कैसे होगा? ज़मीन खरीदोगे पैसे लगेंगे ना, रजिस्ट्रेशन कराओगे पैसे लगेंगे, अप्रूवल लोगे पैसे लगेंगे। एडवांस पैसे कब आते हैं? रेरा अप्रूवल के बाद। नहीं वो सब नहीं। आपने क्या पढ़ा अभी? बॉस मेरी बात सुनो, आपने अभी क्या पढ़ा? वो कितना % ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट है? 7 नहीं 35 7% अप्रूवल कॉस्ट। 3 to 5% वो है। कुछ आपको मार्केटिंग डालना पड़ेगा, है ना। मार्केटिंग खर्चा 5 to 7%। लैंड की कॉस्ट है जो लगभग 30% है। ये सारे पैसे आएंगे कहाँ से सर? एडवांस फ्रॉम कस्टमर से अगर आप काम कर, तो बैंक लोन देगा नहीं सर? नहीं देगा। यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ, आई एम ठीक है। सो यू हैव सजेस्टेड मी वन थिंग, या तो मैं अपने पैसे लगाऊं, दैट इज प्रोमोटर्स इक्विटी फॉर परचेज ऑफ लैंड, या मैं JDA करूं, राइट। और जो मेरे बाकी खर्चे हैं उसके बाद करीबन 12-15% वो कौन देगा? प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च होगा। अभी प्रोजेक्ट 2 महीने बाद लॉन्च होना है। आज के खर्चे कैसे करूंगा मैं?
लॉन्च करने के लिए जो खर्चे चाहिए। बॉस, मेरे साथ तो अपने को लगाना पड़ेगा। यस, वेरी करेक्ट। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है इन ए प्रोजेक्ट, मैं उसको 4 भागों में बांटूंगा। वन विच इज़ द फॉरमोस्ट इज प्रोमोटर्स इक्विटी। मेरा अपना पैसा कितना लगा है, ये डिपेंड करता है मैं किस स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ, है ना। पर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर प्रोमोटर का पैसा अगर 30% से कम लगा है तो ही इज ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट अनटिल अनलेस द मार्केट इज ऑन अ बुल रन। जो कि आप बता रहे हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर से आपका काम हो जाएगा, वो बहुत बुल रन में होता है। एंड दैट इज, अगर वैसा है तो फिर कोई भी खेल लेगा, है ना। आपके सामने अगर बॉलर ही अगर सारी वाइट बॉल फेंक रहा है तो फिर आप आउट कैसे होगे। वी आर टॉकिंग ऑफ ए सिचुएशन वेयर द बॉलिंग का लाइन लेंथ करेक्ट है, मार्केट इज नॉट इन अ बुल रन। आप माल बेचते हो, आपका माल लोग देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस देते हैं और आपका काम चल रहा है, राइट। दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। So in an ideal situation, you need to have at least 30% of the cost as equity. देखिए क्या होता है, एक प्रोजेक्ट को जब हम स्ट्रक्चर करते हैं तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, है ना। आज मैं प्रोमोटर हूँ, मान लीजिए मुझे आज कोई एक बहुत बड़ी लैंड लेनी है, सपोज 100 रुपये की लेनी है, और मेरे पास उस प्रोजेक्ट में कमिट करने के लिए आज 60-70 रुपये है। तो मेरे को उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। 60 रुपये इज गुड एनफ फॉर मी, बिकॉज अगर मेरे को सामने अगर लग रहा है कि मेरा 250 या 300 रुपये लग रहा है, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मान लीजिए वो 35% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट है ना, तो मेरा 60-70 रुपये भी जो है वो काफ़ी है। तो उस समय 30 रुपये के लिए व्हाट आई डू, मैं कहीं से फंड अरेंज करता हूँ, एंड दैट इज माई सेकेंड पार्ट। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। मैं आपके क्वेरी को आंसर करूंगा, मगर अगर मैं अभी समझाऊंगा तो वो जो सेकंड पार्ट है दैट विल बिकम इररिलेवेंट। सो आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरे को याद रहेगा आपका। सो फर्स्ट इज द प्राइमरी इक्विटी, प्रोमोटर्स इक्विटी। सेकंड इज द प्रोजेक्ट लोन। अब प्रोजेक्ट लोन हम किससे किससे लेते हैं, हु आर द लेंडर्स। बैंक भी है, नहीं लैंड नहीं, प्रोजेक्ट कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, तो उसका नाम ही है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। डेफिनेटली, दैट इज वाई आई सेड कि प्रोमोटर इक्विटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो आप जो वेरिएबल बता रहे हैं, आई विल बी कमिंग टू दैट पार्ट, वो आपके पैराग्राफ 5 और 6 में कवर है, तो आई विल बी कमिंग टू योर क्वेरी। तो सेकंड इज आवर बैंक लोन। जनरली सारी बैंक अप्रूव, माने इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। फ्यू बैंक लाइक SBI, HDFC, टू ए ग्रेट एक्सटेंड ऑफ लेट ICICI, हाँ करते हैं, बट उनका पोर्टफोलियो काफ़ी कम है, उनका पोर्टफोलियो काफ़ी कम है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम बिल्डर प्रीफर करते हैं अनटिल अनलेस दे हैव गॉट सम अदर फैसिलिटी देयर। मान लीजिए कहीं कोई लैब चल रहा हो और अदर फैसिलिटी चल रही हो, तो देख यू कैन प्रीफर एनी अदर बैंक। बट बाय एंड लार्ज 3 बैंक्स, SBI, HDFC एंड ICICI, दे आर एज पर द डाटा, देयर ओन डाटा, नहीं करने किसी को मना नहीं है। LIC तो बहुत बड़ा था, आज के दिन उसका पोर्टफोलियो कम होते जा रहा है, आज के दिन उसका पोर्टफोलियो कम होते जा रहा है। आज के दिन जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से दे आर द 3 बिग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस बैंक्स, राइट। देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम 9.5 to 12% डिपेंडिंग ऑन द promoters or the builder's eligibility and his credibility. Third आता है NBFC. Now NBFC is a little sticky wicket because वहाँ पे rates vary from anything from 10 to 18%. उनका स्प्रेड बहुत लंबा है. सम लिस्टेड कंपनी के लिए शायद 10% में देते हो वो, बट इन जनरल 11-12%, और
थोड़ा नीचे जाए तो 18% तक में, 15, 16, 17, 18 तक में जाता है उनका। जनरली NBFC funding is not recommended for a project, but as your query was there, suppose you have got a bridge gap funding needed. Now आप कुछ ज़मीन ले रहे हैं, कुछ आपको कंस्ट्रक्शन फंडिंग करनी है, एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी till the project finance come, till the advance from the builders come, the purchasers, flat buyers come, आप तब तक अपने को एक ब्रिज फंडिंग दरकार पड़ती है, एंड देयर द रोल ऑफ NBFC कम्स इनटू प्ले। Builders generally prefer loan from NBFC for a very short duration because they are very interest heavy, and उसको as soon as the bank fund comes we generally repay it, right? So NBFC is your third one. Of late there has been a new mechanism of funding that is called structured debt and AIF funding. Now if you have got some idea in the audience about the structured debt, alternative investment funding, well, I'll just throw some light on it. Now structured debts are debts where they are in the nature of quasi equity. They take some amount of profit out of you. Now recently we have advised one of our client where the company was issued debentures, right? And debentures का जो redemption है वो हमने percentage of, माने कुछ बिल्डिंग का कुछ शेयर हमने ले लिया कि भाई आप 2 एकड़ पे 15% की जो रिकवरी आएगी वो डिबेंचर रिडेम्पशन में जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेट। सो स्ट्रक्चर्ड डेट में सबसे बड़ा जो एडवांटेज आपको है, यू डोंट हैव टू पे इट आउट, इंटरेस्ट पेमेंट, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, बिकॉज आप जब NBFC और बैंक से आप जब भी लोन लेते हैं वो लोन सिंपल नहीं है। Those loans are linked to your stage completions, and those stage completions are determined not by you, by the bank's valuer. वो आएगा आपके डिटरमिन कितना आपका वैल्यू माने कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका परसेंटेज बताएगा, और उस परसेंटेज के आधार पे बैंक आपको पैसा रिलीज करेगा। योर एलिजिबिलिटी कम्स फ्रॉम द सर्टिफिकेट गिवन बाय द बैंक्स वैल्यूअर। CA का सर्टिफिकेट जरूर लगता है, but if it differs too much, the bank's valuer certificate will be of importance for release of fund, right? Structured debt में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, and this is a new concept, और इस concept के बारे में मैं थोड़ा सा 2 लाइन और बताना चाहूँगा, because we are all chartered accountants here, you can advise your clients. Now these structured debts, since they are, even though they are in the nature of debenture, and once you get it publicly listed, आप इसको अगर लिस्ट करा देते हैं तो एनीवन फ्रॉम द इनकम टैक्स साइट हियर 5 साल बाद या 6 साल बाद जब उसका रिडेम्पशन होगा तो व्हाट विल बी द टैक्सेबल पोर्शन? यस, कैपिटल गेन. It will be capital gain, and it will be a long-term capital gain. It will be a long-term capital gain since it is listed in the stock exchange. And what is your profitability there? The profitability, had it been suppose an LLP or a company, आपका 100 रुपये की कमाई में 25% टैक्स ज़्यादा था, आपको 75 रुपये बच रहा था. आज इस 100 रुपये में आपको 12% का टैक्स जा रहा है. 87 रुपीज़ इज योर अर्निंग. So your earning increases by at least 20%, right? Your earning increases by 20%. So from the point of investor and also from the point of builder, this structure is of late gaining lot of importance, because मेरे को as a builder I don't have to report to the lender. Your investors, AIF जो मैं आपको बता रहा हूँ सर. तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं
they arrange all these activities. No, अपना स्मॉल पार्टी गेटेड लिस्टेड सर आप लिस्टेड नहीं हो रहे हो, आपके वो डिबेंचर लिस्टेड हो रहे हैं. इतनी बड़ी स्मॉल या अभी हमने जिसके लिए किया उसकी पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए ही है. ओके, डिवेंचर कैन बी लिस्टेड डिबेंचर्स आर लिस्टेड, हालांकि कंपनी का नाम तो रहेगा ही, है ना. तो डिबेंचर्स आर लिस्टेड. दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू. आपको कोई रिपोर्टिंग करनी नहीं है, कुछ करना नहीं है, आप अपना बैठा लीजिए 14% 12% जो भी है, बट आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है. अगर प्रोजेक्ट डिले भी होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम बनती है, आपको तो वही देना है. 15% 16% जो भी आया आपको वही देना है ना. बट अगर बैंक से अगर हम आज पैसा लेते हैं, एनबीएफसी से पैसा लेते हैं, तो जितना मेरा प्रोजेक्ट डिले होता है, राइट, उतनी मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाती है. सेकेंड थिंग, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है. आज आपको वही पैसा, वो उसका इंजीनियर आएगा, देखेगा, सर्टिफिकेट देगा, फिर आप बैंक को लिख के दोगे कि सर इतना हो गया, मेरा इतना देना है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आपके यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो दिन रात काम कर रहा है, उसको तो रोज़ पैसा चाहिए, उसको पैसा रोज चाहिए. एंड बैंक विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू डिसबर्स द मनी. तो द प्रोजेक्ट गेट्स डिलेड because of all these bureaucratic hurdles. So this particular, the fourth sector of finance which I have suggesting you, that is the alternative investments, the new source of investment, that is gaining lot of momentum. And fifth, but जिसके बारे में कल एक बहुत लंबा सेशन आप लोगों को देखना है, that is REIT, right? REIT. तो उसके ऊपर एक, बिकॉज इंडिया में अभी आज के दिन लिस्टेड में शायद 4 या 5 ही REIT हैं, आने वाले दिनों में ये 50 या 100 होने वाली है. तो स्कोप इज़ ह्यूज देयर. और जब नई REIT आएंगी तो उसके साथ न्यू इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज एंड द प्रॉस्पेक्ट फॉर द रियल एस्टेट फंडिंग विल बी ऑल्सो मोर, राइट. तो यू डोंट हैव टू लुक ओनली टू द बैंक or to the NBFC. These alternative investment, these REITs will be the key driver for arranging fund for the real estate sector. सर डिवेंचर आप दे रहे हैं, मैं बिल्डर हूँ, मैं बिल्डर हूँ. लोन आ गया, मैं एड्रेस कर रहा हूँ आपका. आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको उसके बदले में डिबेंचर दिया 100 रुपये का. मैटर ओवर. नाउ यू से द डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड. नाउ सिक्योरिटी में मैं आपको मेरा बिल्टअप एरिया का 16% दे रहा हूँ, 18% दे रहा हूँ, 10% दे रहा हूँ. दैट इज योर सिक्योरिटी. सर एक आज बैंक के पास, एक मिनट, या राइट, हाँ एग्जैक्टली. नाउ दिस इज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट, यू गॉट इट राइट सर. दिस इज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट where it is in the nature of debt, is in the nature of debenture. The redemption is in the nature of payout from the sale proceeds. Not may, it will. हाँ मेरी कंपनी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ. हमने उसको 16.87% में वो दिया है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ मी. इफ़ एनीवन वांट्स आई कैन. सर डिपेंड करता है. मान लीजिए मैंने लैंड एक्विजिशन मोड में अगर उठाया है तो 12-13% पड़ेगा. अगर मैंने लेट स्टेज में उठाया है तो मैं ऊपर का परसेंटेज कम कर दूंगा. मेरे को तो देना आपको 13-14 ही है. ये BSc में लिस्टेड है, मैंने BSc का काम करवाया था, NSE का मैंने नहीं करवाया है. बट चूंकि मेरे पास जो लाइव एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ. ओके जी, सब दे दूंगा यार, सारा यही पूछ लोगे. इट इज अवेलेबल, आई विल गिव यू. Collateral is your project. So in that case, even that the developer is selling that project
I'm coming. I'm coming to airport. मेरे पास 10,000 स्क्वायर फीट की एक लैंड है, 100 फ्लैट बना रहा हूँ। मैंने 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है बैंक को मॉर्गेज कर दी। नाउ इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ही हैज रेज्ड। तो मैंने 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है बैंक को मॉर्गेज कर दी। अब मित्तल जी आए, बोले मुझे 2 फ्लैट लेना है। तो मैं तो इसको नहीं बोलूँगा कि भैया ये तो वहाँ मॉर्गेज है, फिर भी आप मुझे पैसे दो। मैं बैंक को बोलूँगा कि सर मेरे पास मित्तल जी 2 का लेने आए हैं, ये उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये उनका एडवांस चेक है, आप ये 2 में जो प्रोपोर्शनेट लैंड है आप खाली करो या रिलीज करो। उसको रिलीज करके आप एक वो लोग एक रिलीज का ऑर्डर देते हैं, उस आधार पे हम इनको वो जगह सेल करते हैं। जो जगह हम इनको सेल करते हैं दैट इज नॉट एनकम्बर्ड टू द बैंक, राइट? दैट इज एनकम्बर्ड टू द बैंक विच इज गिविंग लोन टू यू। हाउसिंग लोन जो दे रहा है, हो सकता है वही बैंक आपको दे रही हो, बट देन यू आर द डिपोजिटर ऑफ द टाइटल डीड, नॉट द प्रोजेक्ट ओनर। सर ये क्वेरी तो प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। नहीं, सॉल्यूशन अपने पास सबके पास है, बट चीज़ क्या है, समय बहुत कम है। मेरे को ये लोग बार बार आंख दिखा रहे हैं। 10 मिनट में मुझे ख़त्म करना है, विनय जी को फ्लाइट पकड़नी है, और मेरे टॉपिक में इतने सारी चीज़ रह गई है अभी, तो मुझे ख़राब लग रहा है। बट एनीवे आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। इसके बाद अब मैं आपके बगल में बैठ जाऊँगा, ठीक है? सर देखिए, लॉस ऐसा है, मैंने आपको जो बताया मैं 15% दूंगा। मान लीजिए अब उनका ही जो क्वेरी है, प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो किसका 15% दूंगा? नहीं, दैट इज व्हाट, दैट इज लास्ट टू बी रिपेड, दैट इज व्हाई इट इज सेड। नहीं, कैसे लॉस तो हो ही गया ना सर उसका। आज एक मिनट, मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट, सर देखिए सबसे लास्ट में तो प्रोमोटर की इक्विटी जाती है, बट उसके पहले उसके अगर आप सबसे देखेंगे तो सबसे आखिरी में प्रोमोटर को प्रॉफिट मिलता है या उसकी इक्विटी जाती है? नहीं, गलत कहाँ पे है? मैं आ रहा हूँ आपकी क्वेरी पे। मान लीजिए जिस प्रोजेक्ट में मैंने डिबेंचर दिया वो प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं। अरे वो अलग चीज़ है, मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए 60 to 70% प्रोजेक्ट इंडिया में डिले होते हैं। ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक डाटा है। एक मिनट 60% अगर प्रोजेक्ट डिले होते हैं, 25% प्रोजेक्ट ऐसे भी थे आज से 4 साल पहले दिल्ली में जो लोग 10-10 साल से बंद पड़े थे। वहाँ पे मुझे बताइए, एक डिबेंचर होल्डर जो पैसा आपको दिया है वो भी तो वो पैसा कहीं लोन से लाया होगा। हो सकता है आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न में दिया हो, IRR में दिया हो, या 14 में दिया हो। अगला भी तो 5, 7, 10, 8 में कहीं पे तो लाया होगा, उसकी भी तो पैसे की वैल्यू है। अगर मान लीजिए जो प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट होने से उसको 14% का रिटर्न आता था, और अगर वही 10% में 10 साल में कंप्लीट हुआ तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा? नहीं, वहाँ पे 2 इक्विटी है। आप वहाँ पे आप 2 इक्विटी है, वहाँ पे 2 इक्विटी है। एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, नहीं 2 फंड, मैं 2 चीज़ को इक्विटी मानता हूँ, एक प्राइमरी इक्विटी, एक सेकेंडरी इक्विटी। आप अगर प्राइमरी इक्विटी की बात करते हैं, जिस केस में प्रोजेक्ट में लॉस होता है तो लॉस ही होगा। हर प्रोजेक्ट में थोड़ी ना प्रॉफिट होता है। चलो कोई बात नहीं, लॉस होता है और बियर प्रोमोटर को ही करना पड़ता है। अपने उस मोटर पे और बाद में साथ कर लेंगे। एनीवे, नाउ अनदर फंड विच समवन टोल्ड मी हियर, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। नाउ आप ये पूछेंगे ये मीन्स ऑफ फाइनेंस कैसे है? सर ये मीन्स ऑफ फाइनेंस ऐसे है कि आज जब पहले अपने बात कर रहे थे कि लैंड कॉस्ट जनरली 25 से 35% के बीच में वेरी करती है, बट अगर मैं जॉइंट डेवलपमेंट कर लूँ आपसे, आपकी ज़मीन है तो मुझे तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो मेरे तो वो 25 से 30% की फंडिंग आपने कर दी आपके लैंड के थ्रू से। दैट फंड आई गॉट फ्री ऑफ इंटरेस्ट विथ फ्यूचर बेनिफिट। तो JDA इज द बेस्ट सोर्स ऑफ
funding for any real estate project. जी सर सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप फ्यूचर में क्या दोगे, कभी भी रियल एस्टेट में ये मत सोचिए। आज के दिन आप प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर रहे हो, सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, इससे अच्छा है मैं आपको फ्यूचर में 30% दे दूंगा। अब मैं आपको एक बनिए की भाषा बताता हूँ, कितना दोगे आप उसको, परसेंटेज क्यों काउंट कर रहे हो? जो प्रोजेक्ट आपका 6,000 में बिक रहा है, 8,000 में बिक रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है? 3,000। तो आप तो उसको 15% ही दिए। माल 6 में बेचे, बनाए 3 में, तो आप तो उसको 15 ही दिए। वेयर इज द लॉस? उसके लिए भी लॉस नहीं है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर पाएंगे, जो भी है। यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। दैट इज वाई आई से the last one which I discussed, that is the joint development agreement, is perhaps the best form of financing for a real estate project. बस कभी 10% के आसपास 10% पड़ता है और सिक्योरिटी मनी। I got it. सिक्योरिटी मनी है, रजिस्ट्रेशन है, अदर अप्रूवल्स है, अराउंड 10% लगेगा। बट पैसा तो देना नहीं पड़ता ना, जमीन का पैसा तो देना नहीं पड़ता ना। नाउ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो अपार्ट फ्रॉम द there are 3 basic things. One is sometimes the joint development agreements are on area sharing basis. अगर आप इतना बनाएंगे तो मुझे इतना देंगे. Second is on the revenue sharing basis. Now on the revenue sharing basis, जो आपका सेल होगा उसका एक certain percentage will go to the landowner. Revenue sharing basis is little easy to administer because आपकी उसमें कोई GST इश्यूज नहीं आता है. जो आप बेचते हैं उसका GST आप जमा करवा देते हैं. आप अगर उसको दे दिए and if that bugger hold it till you receive the OC, you are running the risk of paying the GST from your pocket. Now that is a very interesting observation. GST Act कहता है जो अनसोल्ड एरिया है ऑफ द लैंड ओनर एरिया, लैंड ओनर एरिया, आपकी एरिया जो है वो तो छोड़ दीजिए, जो लैंड ओनर की एरिया है अगर वो अनसोल्ड रहती है OC तक, तो एज ऑन द डेट ऑफ OC जो एरिया अनसोल्ड रह गई उसका GST पेमेंट करने की लायबिलिटी बिल्डर की होगी. सो इन द केस ऑफ एरिया शेयरिंग यू रन दैट रिस्क, राइट? एंड ऑल्सो फ्रॉम द मार्केटिंग परस्पेक्टिव दैट ऑल्सो गिव्स यू अ लिटिल हेडेक. आप 8,000 में बेच रहे हो, उसको पैसे की जरूरत है, 7.5 में बेच देगा, आपकी तो प्रोजेक्ट की रेट कम हो गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो रेवेन्यू शेयरिंग में आपका फुल कंट्रोल है ऑन योर मार्केट, ऑन योर प्राइसिंग, राइट? या प्लीज. हाउ? वेल, एम आई वेल, yeah. So as I have understood you, sir, if I have understood you correctly, you mean to say as on the date of agreement or as on the date of execution of the joint development agreement, whatever share you receive you have to pay tax on that? No. If it is a total revenue sharing agreement, I mean, I will not get any flat, just the total, which is the total I will take. So what will be your revenue? How do you determine it? Sir, it is assessment value on the basis. What assessment value? Sir, they write that I will say that minimum 5,000 and anything above 5,000 per square feet, I will pay tax later. But on the date of agreement, I will. No sir, no sir, I think I am, we are on a different footing. No, let me correct. No sir, no. I am telling you very authoritatively that is not the law. Just a minute. No law, no Supreme Court judgment, nothing else was. Act is very clear. जो चीज बिल्डर के लिए एप्लीकेबल है वो चीज लैंड ओनर के लिए एप्लीकेबल है. अगर बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड में अकाउंटिंग करता है, लैंड ओनर कैन ऑल्सो डू दैट.
अगर बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीशन में करता है, लैंड ओनर के पास स्टिल ऑफ द ऑप्शन, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन में करूं या वो करूं. देयर इज नो सच सेक्शन इन द एक्ट which asks you to pay the tax at the type of execution of joint development agreement. No. And I am telling you very authoritatively, we have been a part of those kind of exercises for last 6-7 years. Nowhere we have paid tax on the date. जी? Transfer of discount reward is a transfer. Yes, that is what I am saying. So आप कैसे डिटरमिन करोगे व्हाट इज द वैल्यू? वो प्रोजेक्ट अगर बना ही नहीं, मैं टैक्स कहां से दूंगा? वॉट एवर इट इज, माई फर्स्ट थिंग इज दैट मेरे को पैसा नहीं मिला, मैं इनकम कहां से आ गई सर? अरे कुछ नहीं, मैं आपसे एग्रीमेंट करता हूं, मैं आपको 5 लाख दूंगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा. एक मिनट, मैं बोला मैं आपको आज 10 लाख रुपया दे रहा हूं, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा बिना पैसा मिले? सर वो जो बात कर रहे हैं वो और गहरी बात बोल रहे हैं कि सर्विस भी नहीं हुई, मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, आपकी जमीन पड़ी है, मैंने कागज का टुकड़ा साइन किया है, मैं टैक्स दे दूं? नहीं. सो वेल, अगेन कमिंग बैक, जेडीए में रेवेन्यू शेयरिंग इज ए प्रीफर्ड मोड बोथ फॉर द लैंड ओनर एज वेल एज फॉर द डेवलपर. इसमें जो एक मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज द ड्राफ्टिंग ऑफ द जेडीए. That is the most important and integral part of a execution of an agreement. उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन में आप कर रहे हैं, what will happen if certain things happen within a certain point of time, आपको अप्रूवल टाइमली आ रहा है नहीं आ रहा है, सपोज लेट से आ रहा है, उस केस में आपकी क्या लाइबिलिटी होगी, और will the landowner allow you some further time to execute the project. These all things must be clearly, specifically mentioned in the project. And that's why the role of a good drafting legal associate is needed. CA का रोल हमेशा हो रहेगा. I don't say only a lawyer can do that. आपके अपने इनपुट वहाँ जरूर रहने चाहिए. Because if you, well, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने अपना जब पहला केस करवाया था, तो मैंने उस ड्राफ्टिंग के लिए मैंने दिल्ली भेजा था, ए वेरी बिग सॉलिसिटर फर्म. व्हेन इट केम, व्हेन आई वाज रीडिंग इट, मेरे को 3 दिन लगे सर पढ़ने में उसको. आई कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज द लैंग्वेज वाज सो इंट्रिग्यूइंग एंड बोरिंग, लाइक नो, एक एक चीज़ को 15-15 पेज में डिस्क्राइब करना, और वो बड़ा वन साइडेड था. ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके ऊपर ज़मीन लेके एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर, है ना. तो मुझे मालूम था वो कभी भी साइन नहीं होगा. तो हमने उसको उसका मेन मुद्दा उठाया वहाँ से, उसको अपने लोकल लैंग्वेज से मैंने उसको ट्रांसलेट करवाया और साइन करवा लिया. अगर वो ड्राफ्ट में अगर उसको भेज देता, वो अपने एडवोकेट के पास भेजता, वो कभी साइन नहीं होता. तो द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज वी नो हाउ टू रिकॉन्साइल. Now I think I have covered almost all the part. हाँ, एक जस्ट ए सेकेंड, एक जो छोटा सा पार्ट इसमें रह गया, दैट इज द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, हाउ इट इज डिसबर्स. इन केस ऑफ योर प्रोमोटर इक्विटी, इन केस ऑफ AIF, दे आर डिसबर्स्ड ऑन पॉइंट ब्लैंक रेंज. आप जिस दिन लेते हैं उस दिन आपका हो गया. जब आप बैंक का फंडिंग लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वो उनके इंजीनियर आते हैं, सर्टिफाई करते हैं, पेमेंट करते हैं, एंड जो आपको पैसा उनसे मिलता है, दैट फ्लैट बायर से, सर वो भी एक एस्क्रो अकाउंट में जाता है, वो पूरा पैसा आपका नहीं है. और उसमें से 70% मनी यू हैव टू स्पेंड ओनली ऑन कंस्ट्रक्शन. यू कांट पुट इट ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड और मार्केटिंग स्पेंड और दिस और दैट, नो, राइट. और जब आप बैंक की फंडिंग ले लेते हैं, उस 70% के बाद आगे एक एस्क्रो और खड़ा हो जाता है. सपोज द बैंक वांट्स टू सेल कि पहले 1 लाख स्क्वायर फीट पे हम 10% आपका लेंगे, वॉट एवर इज यू रिसीव. तो कैसे लेगा? क्योंकि रेरा का एस्क्रो है, वो पहला रे एस्क्रो है. दैट एस्क्रो कैन नॉट बी डिस्टर्ब. द नेक्स्ट एस्क्रो इज आउट ऑफ द रेरा एस्क्रो अकाउंट. वहां से जब आप पैसा निकालेंगे, इट विल गो टू द बैंक फ्रॉम योर 30% अकाउंट ऑल्सो
and from your 70% account also. Different bank have got different way. Some people say we will take only from the 30%, we will not go to the 70%. Some says proportionately 70% में से 7 ले लूँगा, 30 में से 3 ले लूँगा, right? So that is how this mechanism works, right? One last. Now what needs to be an ideal capital structure? हमने इतनी सारी बातें कर ली, लोन भी ले रहे हैं, डिफरेंट AIF और स्ट्रक्चर डेट की भी बातें कर रहे हैं, प्रोमोटर इक्विटी की भी बातें कर रहे हैं. कौन सा कितना परसेंटेज होना चाहिए लगभग? या कूपन रेट तो रहना जरूरी है सर. 6% का डालते हैं हम लोग, पर 6% में कोई देगा नहीं मुझे. Now, for want of time, I am not able to discuss the cash flow planning and all. But suffice to say that cash flow comes from 5 different sources which we have discussed, है ना. एक सोर्स जो मैंने डिस्कस नहीं किया है वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है, which apart from the funding which we get from the equity, quasi equity, बैंक फंडिंग, NBFC फंडिंग, राइट. और एक जो होता है वो है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर द प्रोजेक्ट फिनांस. तो वो सारे कैश फ्लो के डिफरेंट पार्ट हैं. Now, the last part I will discuss shortly. एक रफली आप मान के चलिए किसी भी प्रोजेक्ट में द प्रोमोटर इक्विटी की बात कर रहे थे अपने कि कितना परसेंट होना चाहिए, डेट कितना परसेंट होना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स. आई थिंक यू आर डिस्कसिंग ऑन दैट. आइडियल प्रोजेक्ट मीन्स विल डिमांड मिनिमम 30% ऑफ द प्रोमोटर्स इक्विटी इंक्लूडिंग लैंड minimum. And suppose if the land cost is little higher, you have to increase your percentage of promoter equity to that percent. अगर मान लीजिए आपकी लैंड अगर 25% की जगह अगर 30% होती है तो आप अपना 35% तक रख के रखिए. यू विल बी इन अ सेफ जोन, राइट. यू विल बी एबल टू लॉन्च योर प्रोजेक्ट एंड यू कैन गेट द कंस्ट्रक्शन फाइनेंस. बिकॉज फॉर गिविंग कंस्ट्रक्शन फाइनेंस द बैंक ऑल्सो विल लाइक टू सी हाउ मच इक्विटी यू हैव पुट इन. इफ यू डोंट हैव ए स्किन इन द प्रोजेक्ट, नो बैंक इज गोइंग टू फंड. Right? Now, how do you decide about the quantum of the bank loan? Now, it is a little tedious process where you determine your sales target, right, and your construction targets, align both, and then make a graph out of it. Ki suppose in the month of May, right, I will be able to complete up to the first floor. I will come out of the plinth level and I will have 30 bookings, 40 bookings. तो उस 40 बुकिंग का जो FS है जो कि आप फर्स्ट फ्लोर तक जाने से जो आपको मिलता है, राइट, वो कितना पैसा होगा, आपने कितने लगाए हैं, और जो भी डिफरेंशियल है दैट नीड्स टू बी फंडेड. ओके, बाय गिविंग ए सुटेबल मार्जिन देयर ऑन you decide the quantum of finance that you need. On an average, we take around 40% of the project as bank loan, right? So third one is your construction finance that we receive, the advance from the customers that we receive. So that advance from customers is again dependent on how you perform, because booking आपको कोई कर देगा, but जो periodical payments हैं they come only after your achieving certain construction targets. If you achieve those targets, then only those funds will come to you, right? And generally in a project we have seen when your requirement increases, by that time you have got sufficient fund from the customers at initial level, and at a later level your requirement, when it grows up, you have got a sufficient surplus receivable from the bank as well as the customers. So अगर आपने शुरुआत के 2 साल अगर अच्छे से निकाल लिए, एंड इफ़ यू आर कीपिंग योर फाइनेंस टुगेदर, देयर इज ए वेरी लिटिल चांस ऑफ प्रोजेक्ट नॉट गेटिंग कंप्लीटेड इन अ टाइमली मैनर.
and there will be no want of funds. That much I can tell you. So here just I will like to add one more line. We should never do over leveraging in case of a project. Going for too much of loan is not advisable. Wherever you feel or your client feels that they need some additional fund, instead of going for additional loan, better arrange some private equity, some investors fund. Maybe your profitability reduces, but then your risk also decreases to a great extent. Now, thank you all for a very kind attention. Vinay ji, with your permission, can I take 5 minutes of question sessions, because 2-3 questions are coming. Yeah. Sir, बोलिए. थोड़ा सा loud, please. Is revenue sharing, you mean to say? Right, right. Whatever you receive, that has to be shared with your landowner, right? Landowner उसका क्या ट्रीटमेंट करेगा, that depends on his own tax planning. That has got nothing to do with my real estate funding, finance, feasibility. But from the consultancy point of view, if you want to know, I can again tell you, no tax liability comes at the time of signing of the joint development agreement. Whatever amount you receive, you have an option of determining your tax liability on completion of a project or on a proportionate revenue receipt method. But at no point of time, and उसमें भी बहुत ज़्यादा ये है, अगर आपको मान लीजिए मैं, आपने जो लैंड दी मुझे, आपके बुक में कॉस्ट है 10 करोड़ रुपए की, और देयर इज एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ सम 30 crores कमिंग टू यू, राइट, ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years. इस साल आपको 4 करोड़ रुपए मिले, आप क्या रेवेन्यू अकाउंटिंग करेंगे? मुझे एक गेस आइडिया बताइए ना सर, क्या करेंगे? 25% हो गया, चलो सर, उसके बाद भी क्या करेंगे? सर यू आर कंफ्यूजिंग. एक मिनट. नहीं, इनकम टैक्स प्रोविजन, आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑन दैट. एग्जैक्ट प्रोविजन. We are confusing between sale of a project and the revenue receipts. Our final sale, as per RERA also, Mr. Vinay will be taking a session on that. You cannot execute sale deed before you get OC or CC, occupancy certificate or completion certificate. You have got different names in different region. वो एक separate part है. But determination of tax liability is fully dependent on your choice of either on partial proportionate completion method और a full completion. आपके पास वो चॉइस है और बिल्डर के पास भी वो चॉइस है, राइट? और किसी भी केस में आप जो भी करेंगे वो एक गेस्टिमेशन है, बिकॉज दैट कैन नॉट बी एन एग्जैक्ट साइंस. आप 30 करोड़ का एस्टिमेट लिए हैं, अगर मान लीजिए 25 ही आया तो आप आने वाले पहले सालों में आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया. मान लीजिए 25 करोड़ के बाद आपके पास पेमेंट ही नहीं आया और आप ऑलरेडी 26 करोड़ का एस्टिमेशन कर चुके हो. So there is a guesstimation there. So we have always suggested our clients go for a project completion method में only. पूरा कंप्लीट हो, उसके बाद जो पैसे आए आप उसके ऊपर टैक्स भरो, राइट? सर now there are various provision. IBC है, सरफेसी है, शायद कल उसका भी एक सेशन है सर. प्रोजेक्ट को सर देखिए, जो लेगा वो कंप्लीट करेगा ही करेगा. हाँ हाँ
सबने मिलकर पूल बनाया और पैसा डाला, लाओ जो 2-2 लाख 20 लाख लाइए हम बनाते हैं, तो वो रह रहे हैं। प्रोजेक्ट फेल्स इफ इट हैपेंस एट द लास्ट रिसोर्ट, तो आप अपना पैसा तो बचाएंगे ना। एक बड़ा फेमस केस है दिल्ली का, गुड़गांव नोएडा में देयर वाज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ कोर्टयार्ड। नाउ वो प्रोजेक्ट शायद चालू हुआ था सन 2019-20 में, एंड इट इज़ ए रिपोर्टेड केस इन द रियल एस्टेट सेक्टर। वो प्रोजेक्ट बड़ा मैसिव रूप से लॉन्च हुआ था एंड इट कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन ए टाइमली मैनर। आईबीसी में गया एंड बिलीव मी, जब वो आईबीसी में गया उसी दिन जो लायबिलिटी थी 100% पेमेंट करके और एक ग्रुप ने ले ली और वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, है ना। तो आज सर आपकी फंडिंग कितने है, मैं बता रहा हूँ 40%, प्रोमोटर तो अपना 30% बेचारा लगा ही चुका है ना, उसका 30 जा रहा है। और उसी बीच में लैंड के रेट बढ़ गए, फ्लैट्स के रेट बढ़ गए, कुछ अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें आप कमा लोगे, है ना। तो लेने वाले के लिए देयर आर नॉट अ बैड प्रोस्पेक्ट। आईबीसी में बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जाके सक्सेसफुली कंप्लीट हो भी रहे हैं। यस सर, आपका कुछ क्वेरी था, मेरे को लग रहा था। राइट, आई थिंक वी वर डिस्कसिंग ऑन दैट पॉइंट ओनली। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अपने पास एक टू गेस वर्क है कि आने वाले दिनों में मेरे को इस ज़मीन में मेरे को 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द लैंड मिलेगा। सपोज आपने मुझे एक ज़मीन दी, मैंने आज एक रेट निकाला 6,000 7,000 कुछ भी रेट निकाला, राइट, और उसमें कुछ 10 फ्लैट बेच दिए, 400 फ्लैट हैं, है ना। आपको पहले बार मिला, चूँकि 20% 25% कंप्लीट नहीं हुआ, आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगले साल मैंने 100 फ्लैट बेच दिया, राइट, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, मुझे थोड़ा सा आप कैलकुलेशन दे दो, क्या होना चाहिए। आपका जो एस्टीमेट था कि मेरे को 30 करोड़ मिलने हैं, इसमें 10 करोड़ मेरे लैंड की वैल्यू है, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 25% लैंड सेल हुआ है तो मुझे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। दैट विल बी योर कैलकुलेशन, या वो कुछ और होगा, वही कैलकुलेशन होगा ना। सपोज इन फ्यूचर वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, या ऐसा हुआ कि उसका वैल्यू ड्रॉप कर गया, देन व्हाट विल बी योर प्रॉफिट। ऐसे करते करते मान लो आप 26 करोड़ तक का टैक्स भर चुके हो, बाद में आपके पास पैसे आए ही नहीं, और ओसी नहीं मिली है, आपने फ्लैट सेल डीड आपको नहीं होगी। रेरा की जो प्रोविजन बोलते हैं, आपको पूरे पैसे जो हैं फ्लैट ओनर जो उन्होंने किए उसको वापस करने पड़ेंगे। आपने जो मलाई खाई है 26 करोड़ की, वो तो वापस दोगे ना, टैक्स के पैसे कौन देगा। एम आई क्लियर? सो दैट इज वाई ऑलवेज एडवाइज योर क्लाइंट टू कंप्लीट इट ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गाइडेंस नोट में कुछ एक चेंजेस आए हैं, बट दैट इज अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिल्डर, नॉट फ्रॉम द लैंड ओनर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड आई एम हियर टिल टुमारो। कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज रीचेबल एंड आई विल बी शेयरिंग माई स्लाइड्स विथ ऑल ऑफ यू थ्रू द ब्रांच। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vinod sir. It's a really incredible journey with you. We have nicely covered the topic project feasibility analysis and project finance and mortgaging. Thanks a lot, sir.